हेलो ऑल। तो आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल फीमेल, हाउ द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, gestation and childbirth. Okay, so humans are what? Do we lay eggs? No, we give birth to children directly, the young ones. So we are viviparous, right? So humans are viviparous. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम में होता है, व्हाट आर द मेन इवेंट्स? सबसे पहला क्या? फर्स्ट द गैमेट्स, राइट? सो गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, so events of sexual reproduction क्या क्या है? Gametogenesis. Gametogenesis means what? Production of male as well as the female gamete. फिर insemination, transfer of the male gametes to the female genital tract, right? And then fertilization, which means fusion of both the gametes. और fusion के बाद क्या होता है? Zygote. This zygote develops into the embryo, right? Zygote, it starts dividing and then it is implanted into the uterus of the human female. Or after implantation, it leads to pregnancy. फिर gestation. Gestation means what? From zygote formation till childbirth. And parturition means what? Childbirth. Okay? तो यहाँ पे हम धीरे धीरे एक के बाद एक सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. So let's begin with male reproductive system. So now let us look into male reproductive system. Okay, so what does it consist of? तो primary male reproductive part क्या है? Primary means what? The part that gives rise to the gametes directly. That is the primary or the first. उसके बगैर तो बाकी सब बेकार है अगर gametes ही produce नहीं हो रहा है, right? So what is the primary one? Right? Testis, one pair. What is the size and shape? They are 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter width in width. Right? Oval shaped. Where are they situated? They are situated outside the body in a special sac called scrotum, right? Located scrotum is one sac and testis is one pair. मतलब दो testis होते हैं, right? And scrotum is connected to inguinal canal, abdomen से. Okay, why is the scrotum placed outside the body? बाहर क्यों है? To maintain a temperature lower than that of body temperature, because that जो body temperature है that is a bit high for spermatogenesis. उसमें spermatogenesis सही से नहीं होगा.
ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 2 to 2.5 डिग्री बिलो द बॉडी टेम्परेचर, राइट? Lower than that of clear? Scrotum is placed outside the body to maintain optimum temperature at 2 to 2.5 degrees Celsius lower than body temperature, which is optimum for spermatogenesis. इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? What are the other sex organs? ये तो हो गया प्राइमरी, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का देखते हैं. Secondary sex organs can be divided into 3 categories. Accessory ducts, ओके. एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या है? रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. Accessory glands, seminal vesicle, one pair, okay, 1p. So ये दो one pair है. Prostate is one single gland and external genitalia is penis. Penis has dual role. It is used for passing urine as well as transfer of gametes from testis to the female genitalia. Okay, and it is made up of special muscles which helps in the erection. That is helpful in case of insemination. Okay. End of penis is swollen and it is called glans penis, which is covered by a fold of skin called the foreskin. Okay. बच्चों अगर ऐसे लिख के रखो, if you write make your notes like this, then it will be very easy for you to remember. तो ये हो गया ऊपर ही ऊपर एक rough overview of the male sex organs. Now let us look in details. Okay. So let's look by looking into the structure of testis. तो टेस्टिस का इट इज अ पेयर, मीन्स टू टेस्टिस आर प्रेजेंट, राइट? और टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमने इससे पहले लिख दिया था. द लेंथ ऑफ टेस्टिस इज ऑन एन एवरेज 4 to 5 centimeter and width is 2 to 3 centimeter, right? Now let us look at the structure LS of a testis. उसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है. तो टेस्टिस क्या? इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड एन इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल जो है इट इज मेड अप ऑफ मेनी कंपार्टमेंट्स, ऑलमोस्ट 250 कंपार्टमेंट्स इन ईच टेस्टिस. और उसके बाहर का ये है प्रोटेक्टिव लेयर. ओके, तो पहले हम प्रोटेक्टिव लेयर का देखते हैं. प्रोटेक्टिव लेयर इज मेड अप ऑफ 3 layers. Outermost is called tunica vaginalis. फिर this
थोड़ा नीचे करूं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, दिस इज द मिडल लेयर, ये आउटर मोस्ट, फिर यहां पे इनर मोस्ट इज वेस्क्यूलोसा, इनर मोस्ट हाईली वेस्क्यूलराइज, मतलब वेस्क्यूलर ब्लड वेसल्स काफी है इसमें। मैं इसको यहां दिखा देती हूँ, ये लोब्स के बिल्कुल बाहर, दिस इज द लेयर ओके विथ ब्लड वेसल्स। तो ये तीनों को मिला के दिस प्लस दिस मेक्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग। और ये क्या हो गया, ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट, द कंपार्टमेंट्स, एंड दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब एक एक लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ईच लोब्यूल, इसके अंदर क्या होता है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या, मीन्स वेरी फाइन ट्यूब लाइक, ओके। तो ईच कंपार्टमेंट मैं यहां पे लिखती हूं, टू पार्ट्स, एक है फर्स्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेकंड इंटरस्टिशियल स्पेस, ये हम कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और these are seminiferous tubules are closed at one end, open at another. अब यहां से निकल के ये क्या होता है, they form a network. ओके, ये है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस यहां से फिर निकल के they form this vasa efferentia. वैसा एफरेंशिया जॉइन करके दे फॉर्म, ये टेस्टिस रहा, ओके, दिस इज द कंप्लीट टेस्टिस, यहां से दे फ्लो कम डाउन एंड देन इट एंटर्स द एब्डोमेन, दिस इज कॉल्ड, यहां पे दिस इज द एपिडिडाइमिस, एपी and the part which is ascending and entering the abdomen is vas deferens. Enters the abdomen, okay, enters abdomen, लिख लो, ये loops over testis on posterior sides, पीछे की तरफ होता है, क्लियर है। Vasa efferentia is just coming and रेटिटेस्टिस सबसे पहले, so this is the flow, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वैसा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस, ओके। अब हम वापस कंपार्टमेंट पे आते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, दिस आर वेरी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका अगर एक ट्रांसफर्स सेक्शन देखें, लाइक दिस इज द वन, इट कंसिस्ट ऑफ single layer of male germ cells. ये जो है, these are male germ cells या germinal epithelium, क्योंकि ये outermost single layered है, एक तो epithelium है, and because they are going to give rise to gametes, so functionally they are what? They are the germinal layer. That is why germinal epithelium.
क्लियर है? एंड सम स्पेशल सेल्स कॉल्ड सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल्स. नाउ मेल जर्म सेल्स व्हाट डू? दे डिवाइड. अब मैं इसको इरेज करके लिखती हूं. So seminiferous tubules consist of male germ cells plus Sertoli cells. They divide mitotically to produce what? Spermatogonia. Spermatogonia वो है जो बाद में चल के spermatocytes बनाएंगे, फिर मियोसिस करके स्पर्मेटिड्स बनाएंगे. ओके, टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी मतलब स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनते हैं उनमें पीरियोडिकली कुछ कुछ में मियोसिस होता है, सारे के सारे में एक साथ नहीं होता. क्लियर है? इनमें मियोसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड क्या है? अनडिफरेंट, इमेच्योर, फुल्ली मैच्योर हुआ नहीं वैसा एक स्पर्म. Then spermatozoa या sperm. Clear है? This is the matured one. और Sertoli cells का क्या काम है? After the spermatozoa is formed, ये अपना सर Sertoli cell पे गाड़ के बैठे रहते हैं for nutrition. They provide Sertoli cells के 3 functions actually. मैं let me wipe this and then write. मेरा बोर्ड सचमुच बहुत छोटा है. तो यहाँ पे देखिए तो वहां पे जो डायग्राम मैंने बनाया था उसी आई हैव मेड दैट डायग्राम अगेन इन अ बेटर वे. सो दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ लोब्यूल. ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है. दीज आर द ब्लड वेसल्स. ओके, दिस इज द एसटी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये है लेडी सेल्स. These are the blood vessels. ये दूसरा seminiferous tubule, ये तीसरा वाला. So do you see the Sertoli cells here? And this is the germinal epithelium. Okay? तो यहाँ पे where were we? So उसी का ही यहाँ पे देखता है. So this is the germinal epithelium या male germ cells. They divide. माइटोसिस से डिवाइड करता है एंड दे फॉर्म दिस स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया का क्या मतलब है? मतलब द सेल्स विच आर द फ्यूचर स्पर्म्स. फ्यूचर में ये स्पर्म्स बनाने वाले हैं, राइट? ये फर्दर डिवाइड करता है, ये माइटोसिस, क्योंकि पहले इनका है खाली अपना नंबर बढ़ाना. फिर यहां से भी माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस. फिर कुछ सेल्स विच आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब वो सेल के अब जिनमें डिवीजन होने वाला है, मियोसिस होने वाला है टू गिव राइज टू द स्पर्म्स. ओके, यहाँ टू गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म वाला सेल. CYT मीन्स व्हाट? सेल. यहां से मियोसिस होगा एंड इट विल गिव राइज टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. मतलब मियोसिस 1 हो गया, अब मियोसिस 2 हो गया. मियोसिस 1 के बाद इनमें मियोसिस 1 हो गया, सेकेंडरी हो गया, 2 सेल्स. फिर ये डिवाइड करके दे फॉर्म, यहाँ पे ये अनडिफरेंशिएटेड वाला ले लो, स्पर्मेटिड. क्लियर? स्पर्मेटिड मीन्स व्हाट? अनडिफरेंशिएटेड एंड नॉट कंप्लीटली मैच्योर्ड स्पर्म. जैसे पूरा का पूरा मैच्योरेशन हो गया, दे हैव अ टेल एंड एवरीथिंग. ये सर्टोली सेल्स हैं. They embed their head in the Sertoli cells for nutrition. Now Sertoli cells have got 3 functions.
प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्मेटोजोआ, मतलब पूरा मैच्योरेशन के बाद, ओके, उससे पहले नहीं, प्लीज कीप दैट इन माइंड। दूसरा इज टू सिक्रीट ABP, which is एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, फर्दर इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ओके। इन द लोब्यूल्स। और थर्ड इज सिक्रीट इनहिबिन, which signals brain to stop secreting सर्टोरी सेल्स के ये 3 फंक्शंस होते हैं। राइट नाउ जस्ट राइट देम डाउन, अभी इनका फंक्शन थोड़ी देर में समझने वाले हैं, ओके। तो ये तो हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। द जर्मिनल एपिथेलियम एंड सर्टोरी सेल। जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड करते करते they first give rise to spermatogonia, spermatogonia से primary spermatocyte, and not all primary spermatocyte, some of them periodically they undergo meiosis, meiosis करके पहले secondary बनाते हैं, फिर वहां से spermatid मतलब उनमें पूरा differentiation maturation आया नहीं है, जैसे पूरा maturation हो जाता है fully developed sperm is also called a spermatozoa, और जैसे fully matured हो जाते हैं they dig their head into the सर्टोली सेल्स फॉर न्यूट्रिशन। क्लियर। अब बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में यू हैव दिस ब्लड वेसल्स, यू हैव अदर सेल्स व्हिच प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंसेस। इंपॉर्टेंट वन इज लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का क्या काम है, दे आर द एंडोक्राइन सेल ऑफ द टेस्टिस। एंडोक्राइन सेल ऑफ द टेस्टिस मींस व्हाट, दे आर सिक्रेटिंग हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, androgens. Androgens are what? They are male steroidal sex hormones, और वो काफी it's a hormones, मतलब काफी तरह के hormones है। So androgens is a name collectively given to all those hormones, of which testosterone is one of the important type. क्लियर है। सो विद दिस वी आर डन विद द टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या क्या होता है, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर है, ओके। तो एक लॉब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर क्लोज्ड एट वन एंड, ओपन एट अनदर, एंड दे ओपन इनटू द रेटिटेस्टिस। क्लियर है, आउटसाइड द लोब्यूल। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक ट्यूब्यूल का क्या है, द सराउंडिंग स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ मेल जर्म सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियम, और बीच बीच में सर्टोली सेल्स। क्लियर। द जर्मिनल सेल्स दे डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस, फिर स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। और सर्टोली सेल्स बीच में दे हैव दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मैच्योर्ड स्पर्म्स, एबीपी सिक्रीट करते हैं एंड इनहिबिन। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर अगर आ जाए तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड वेसल्स है, other cells are also there, but the important one is Leydig cells. Leydig cells are what? They are the endocrine cell, मतलब the hormone secreting cell of testis. कौन सा hormone secrete करते हैं, androgens, the collective one, of which testosterone is an important one. अब sperm बन चुका है and sperms will be released, but after release where do they go through, वो पाथ हम देखते हैं। क्लियर है।
तो ये उनका फ्लो होता है. स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फिर रेटिटेस्टिस पे जाते हैं, रेटिटेस्टिस से वैसा एफरेंशिया, वैसा एफरेंशिया लीव्स द लोब्यूल, ओके, बाहर लेके जाते हैं. एंड एपिडिडाइमिस हमने डायग्राम में देखा है, दे लूप ओवर द पिछले साइड से, फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस दे लूप ओवर एंड दे जॉइन द वास डिफरेंस. वास, दिस इज द टेस्टिकल, वास डिफरेंस, ये यहाँ पे एपिडिडाइमिस, दिस इज द टेस्टिस, राइट. यहाँ से सारे रेटिटेस्टिस एंड एपिडाइम सॉरी वासा एफरेंशियल बन के जाके एपिडिडाइमिस से जुड़े, एपिडिडाइमिस नीचे आके then they join the vas deferens. Vas deferens enters the abdomen. Clear है? And after entering the abdomen, it loops over urinary bladder. फिर अब तक, so these are the accessory ducts. Sperm produce हो गया है, they have been taken out of the testis and they have traveled all the way up to the abdomen. Now the role of the accessory glands come. After they loop over the urinary bladder, seminal vesicles join. Then they are called ejaculatory duct. Then it becomes ejaculatory duct. It enters the urethra. Okay. अब से urethra, from now urethra becomes the urinogenital tract. This passes through prostate gland. फिर bulbourethrum, just before it enters the penis. Then it enters the penis, and penis का जो opening है, which is the external orifice or urethra meatus, through that it gives its product out. Okay. So this is the flow of the sperms. Sperms after urinary bladder, when जब seminal vesicle से दो duct आके जब they are joining the vas deferens, when it becomes ejaculatory duct, from there it becomes the semen. मतलब the seminal plasma is added. Who adds the seminal plasma? This seminal vesicles, prostate gland and bulbourethral gland. अब तक खाली sperms आ रहा था, यहाँ से the plasma is also added. And now let us look into the secretion of the three glands. Okay. So sperms have been released from the testis. Now they are traveling down the accessory ducts, or secretion from these three glands plus the sperm is making semen, right? और ये जो तीन glands हैं, इनका जो secretion है, they make the plasma part of the semen. तो इन तीनों का क्या क्या है secretions देख लेते हैं. Seminal vesicles, 1p means 1 pair, मतलब दो है. इनका secretion is alkaline. So alkaline secretion that forms 60% of the semen. Okay, काफी इनका contribution ज्यादा है. The pH is 7.4, alkaline है. Why? Because इसके बाद जो urethra और female genital में acidity है, उसको neutralize करने के लिए. And secretion from the seminal vesicles contain fructose. And fructose is mainly meant for nourishing the sperms. इससे पहले सर्टोली सेल्स पे ले रहे थे. Now they are out of their comfort zone, so they are going to get nourishment from this secretion of the glands. Fructose हो गया. फिर they give some clotting proteins. Clotting proteins क्या है? These are not the बिल्कुल blood के जैसे coagulate वो वाले प्रोटीन नहीं है, उनसे अलग है, but their function is after ejaculation semen को coagulate करना. Okay.
नाउ लेट अस कम टू प्रोस्टेट ग्लैंड. ये खाली एक ही बड़ा सा ग्लैंड है. इट्स सिक्रीशन इज मिल्की. इसका थोड़ा सा एसिडिक होता है एंड इट फॉर्म्स 25% ऑफ द सीमेन बाय वॉल्यूम. साइट्रिक एसिड रहता है इनके सिक्रीशन में, विच अगेन नरिशेस द स्पर्म. इसके अलावा एंजाइम्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स. ओके. लास्ट वन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ये फिर से अल्कलाइन सिक्रीशन करते हैं, द फाइनल वन, सो दैट यूरेथ्रा और द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो एसिडिटी होता है, इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड. टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा एंड दे गिव म्यूकस फॉर lubrication. क्लियर है? Now I am going to draw a very rough sketch of the vas deferens and how it travels out along with these glands. Okay. तो ये एक बहुत ही रफ डायग्राम है of the testis and this accessory ducts. So let's begin. This is the testis, right? और ये epididymis, यहाँ से vas deferens is traveling. ये urinary bladder के ऊपर loop it loops over. ये ureter है. मैं इधर आप लिखती हूँ. This is the ureter. This is the vas deferens. ये दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. डू यू सी? यहाँ पे ये है सेमाइनल वेसिकल. इधर भी है, इधर भी है. यहां से डू यू सी दिस डक्ट, राइट? सेमाइनल वेसिकल से जो डक्ट निकल रहा है वो इट कम्स एंड जॉइंस. फिर यहां से दिस बिकम्स द इजैक्यूलेटरी डक्ट. Then it enters the urethra. Do you see? Urinary bladder यहाँ पे खत्म. This is the urethra. It comes and joins the urethra here. दोनों तरफ से ही. यहाँ से भी ये duct है, ये vas deferens है. This is the ejaculatory duct. और ये है prostate gland. Prostate gland पूरे यूरेथ्रा को यूं घिरे रखता है. एंड देन इट गोज एंड जस्ट बिफोर एंटरिंग द पेनिस, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. Here, then urethra enters the penis and it goes out through this external orifice, urethral meatus. Urethral meatus. And this swelling is the glans penis. और यहाँ पे एक लूज कवरिंग ऑफ स्किन रहता है, विच इज कॉल्ड द फोरस्किन. ये बहुत ही रफ डायग्राम है और यहाँ पे मैंने काफी गैप छोड़ छोड़ के बनाया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, द डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. इट्स अ वेरी गुड डायग्राम, बट एक्चुअली बहुत कम जगह होता है वहां पे. यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजिली. सो यहाँ पे मैंने ये डक्ट्स को लंबा लंबा किया so that you can understand where from it becomes the ejaculatory duct, where it is entering, where is the prostate gland, bulbourethral gland कहाँ है. Okay, now so far we have read the structure of the testis, how are sperms formed, what are the secretions needed, which is the way it is traveling. एक बात है कि हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेसेस, द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैपनिंग, बट रिमोट कंट्रोल किसके पास होता है? द एंडोक्राइन सिस्टम. दिस मींस हार्मोनल कंट्रोल होता है. हार्मोन ने अगर गड़बड़ कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाएगा, राइट? हार्मोन्स जैसा चाहेंगे वैसा ही होता है. सो लेट्स लुक एट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ हाउ स्पर्म्स आर मेड. ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए where from it begins the hormonal control, hypothalamus of the brain, right? Hypothalamus कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? GnRH, which is gonadotropin releasing hormone. ये जाके एक्ट कहाँ करता है? anterior lobe of pituitary gland. Okay, और वहां से दो तरह का हार्मोन्स आर सिक्रीटेड. वन इज LH, another is FH. LH is luteinizing hormone. ये है follicle stimulating hormone.
LH आके it reacts on the Leydig cells, okay? और Leydig cells इसके under its instruction it secretes testosterone. याद है हमने Leydig cells के function में पढ़ा था कि it secretes androgens of which testosterone is one of the important example. तो जब तक इसको यहाँ से anterior pituitary gland से ये signal नहीं मिलता it will not secrete. Clear है? और testosterone क्या करता है? It helps in developing the secondary sexual characters as well as the accessory ducts and glands. Okay? फिर हम सर्टोली सेल्स पे जाते हैं. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब क्या? जो फॉलिकल्स पे एक्ट कर, जिनका एक्शन फॉलिकल्स होने वाला है. फॉलिकल्स मतलब क्या? यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स, जहां से स्पर्म्स निकल रहा हो, राइट? तो ये जाते हैं सर्टोली सेल्स पे. सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि यू डू द स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सिक्रीट एबीपी. एबीपी क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. दिस इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इसका ये काम होता है. ओके फिर जब काफी हद तक ये हो जाता है देन इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड इनहिबिन. इनहिबिन वापस जाता है हाइपोथैलेमस को और बोलता है कि हो गया, stop it for now. Okay, then it stops secreting GnRH and the entire cycle stops. Now, in male, on the onset of puberty, which is at around 12 or 13 years, periodically spermatogenesis होता है. Not all the cells undergo spermatogenesis at the same time. Under the influence of the hormone, this is the cycle followed. और कुछ cells को some of the primary spermatocytes are identified and they undergo meiosis periodically. Clear है? Now, LH and FSH, these are the sex hormones common in both male and female. Follicle FSH जहां भी होगा, in male हो या female हो, they are always related to the function of follicles, which means what? The cells which are producing the gametes. और luteinizing का कुछ side functions होता है. Okay, like here it is to trigger the secretion of another hormone. Clear है? So this is the basic one. This is how the hormonal control of spermatogenesis. And in men, once they hit the puberty, spermatogenesis begins and they are able to do this for the lifetime. Unlike in women where in menopause, after menopause, after certain years, the production of gametes stops. Okay, so with this we are done with the male reproductive part, gametogenesis and its hormonal control. Hormonal regulation of spermatogenesis के बाद एक डायग्राम देख लेते हैं कि spermatogenesis एक सेल से, एक स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्म बनता कैसे, वेयर इज द प्लॉइडी, माइटोसिस कहाँ होता है, कहाँ से मियोसिस शुरू होता है और प्लॉइडी कहाँ चेंज होता है, राइट? सो स्पर्मेटोजेनेसिस ये होता कहाँ है? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो इफ यू सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बॉर्डर पे क्या है? द मेल जर्म सेल्स. मेल जर्म सेल्स मतलब क्या? दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम लेयर. बिल्कुल पेरिफेरी में है और गैमेट्स को दे गिव राइज टू द गैमेट्स, दैट इज व्हाई दे आर रेफर्ड टू एज द जर्मिनल एपिथेलियम या द स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया मतलब क्या? द फ्यूचर स्पर्म सेल्स. और बीच बीच में सर्टोली सेल्स होता है, राइट? तो व्हाट दे डू, पहले the germ cells they divide mitotically. पहले अपना नंबर बहुत बढ़ा लेते हैं and then out of those spermatogonia जब नंबर इंक्रीज हो जाता है, some cells react or some cells act as a primary spermatocyte. सारे के सारे cells एक ही बार में primary spermatocyte नहीं, they don't act as a primary spermatocyte. तो और डिवीजन भी जब होता है वो पेरियोडिकली होता है. इट्स नॉट दैट ऑन अ कंटिन्यूअस एंड नॉन स्टॉप बेसिस, नो. ओके, तो लेट्स टेक वन स्पर्मेटोगोनिया या अ जर्म सेल. तो इसका प्लॉइडी क्या है? ट्वाइस एम, क्रोमोसोम नंबर 46. पहले दे इंक्रीज देयर नंबर, सो दे अंडरगो माइटोसिस. तो माइटोसिस हो रहा है, प्लॉइडी चेंज होने वाला नहीं है. 46. Now some cells out of these will
behave as primary spermatocyte. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जाके मियोसिस होता है. लेट मी राइट हियर मियोसिस 1. मियोसिस हो गया तो 1 से 2 हैप्लॉइड सेल्स हो गए, N एंड द क्रोमोसोम नंबर चेंजेस टू 23. ये अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. खैर यहां से भी वही 1 2 23. क्लियर है. स्पर्मेटोसाइट्स हो गए. अब इन पे मियोसिस 2 होने वाला है. सो दे विल अंडरगो मियोसिस 2. अब मैं खाली एक ही सेल का दिखा रही हूं. ओके, नाउ इट अंडरगोज मियोसिस 2. मियोसिस 2 के बाद क्या हो गया, 1 से 2 एंड दीज आर द स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड का मतलब क्या, द अनडिफरेंशिएटेड स्पर्म. मतलब सेल हो तो चुक गया है पर उसका सर पूछ ये सब अभी बनना बाकी है, डिफरेंशिएट होना बाकी है. तो यहां पे लिख दो अनडिफरेंशिएटेड स्पर्म. क्लियर है. तो इससे भी अब 2 बना लेते हैं, N, फिर इससे भी 2 और इससे भी 2. क्लियर है. अब इनमें जो होना है, अब डिविजन्स खत्म. अब जो होना है दैट इज डिफरेंशिएशन. मतलब सर पैर पूछ ये सब लगने वाला है. डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद दे आर फॉर्मिंग स्पर्म्स. फिर ये स्पर्म हो गए. क्लियर है. सो दिस इज द डिवीजन. और कब माइटोसिस होता है, कब मियोसिस होता है. इज दैट ऑल क्लियर. प्लॉइडी कहां से चेंज होता है. सो द प्लॉइडी चेंजेस फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. मियोसिस कहां देखने को मिलता है, इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, राइट. सो द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम हियर टू हियर, स्पर्मेटोगोनिया से लेके फाइनल स्पर्म तक, इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स व्हाट, जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस. क्लियर है. सो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और गिविंग राइज टू स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. नाउ अब हम यहाँ पे चले आते हैं स्पर्मेटिड से. स्पर्मेटिड से ये जो डिफरेंशिएशन होकर स्पर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. Clear? So spermiogenesis is nothing but the differentiation. Now after the sperms are formed, ये सर्टोली सेल्स पे तो हमेशा के लिए रहने नहीं वाले हैं. They are going to be released out of the seminiferous tubules. So their release is called spermiation. Clear है. So these 3 terms are also there in your book and I have explained it along with this diagram. So is the concept clear कि division कैसे होता है, कहाँ mitosis, कहाँ meiosis, ploidy कब change हो रहा है, and along with that what is spermatogenesis, spermiogenesis and spermiation. हो गया. इसके बाद हम देखेंगे human sperm cell का structure. Okay, and after that I think the human male reproductive part will be done. फिर हम फीमेल पे जाएंगे. तो अब हम एक ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया है. हाउ आर द स्पर्म्स मेड, द हार्मोनल कंट्रोल, द प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी ऑर्गन्स. फाइनल थिंग इज एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, राइट. तो स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. The entire sperm is covered by a plasma membrane. ये, okay.
ये पूरे को कवर करके रखता है। एट द टिप, ये सबसे ऊपर जो है ये हेड रीजन है, इसके ऊपर एक सर्कुलर, हाफ सर्कुलर सा रीजन होता है विच इज कॉल्ड एक्रोसोम। दिस एक्रोसोम इज रिच इन गोल्गी बॉडीज, hyaluronidase enzyme and proteolytic enzymes. Those enzymes are helpful in penetrating the ovum. The corona radiata, zona pellucida layer, उनको तोड़ने के लिए वो सब enzymes चाहिए होता है। Acrosome plus this head, ये दोनों मिला के head region होता है। This is the prominent nucleus. इसके बाद it narrows down and this is the neck area. नेक एरिया के टॉप में ही एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एट द डिस्टल एंड देयर इज अ रिंग सेंट्रियोल। और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बीचों बीच एक एक्सियल फिलामेंट होता है। या नाउ इट्स डार्क। एक्सियल फिलामेंट ये कुछ नहीं, वो माइक्रोट्यूब्यूल से ऐसे अरेंज्ड होते हैं सो दैट द स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड। And this part is rich in mitochondria. Mitochondria gives the energy, क्योंकि इनको energy चाहिए to move around, right? So this part neck is rich in mitochondria. उसके बाद है tail. Clear है? ये axial filament जो है, it continues in the tail to maintain its structure. So with this we are done with the structure of male sperm. हो गया? So I think male reproductive part भी complete हो गया है.